Hello everyone, this is your English teacher and your mentor Miss प्रीति और आप देख रहे हैं इंग्लिश क्लासेस बाय प्रीति मैम. होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल. क्या आप इंग्लिश ग्रामर में काफ़ी अच्छे हैं? लेट्स फाइंड आउट. In this video we have 25 plus English grammar quiz questions for competitive exams practice like SSC, UPSC, banking, any other test that challenge your language skill. Each question tests your accuracy and speed. So grab a pen and paper, keep score and find out how many questions you can get right. Are you ready for your English grammar test? Let's begin. Our first question is the food dash delicious. The food is singular, count singulars. That's why we are using S or ES. Okay. The taste is wrong answer and the right one is B, tastes. This is the right answer. It means dash to me. Allot और अलोट. अलोट मीन्स होता है काफ़ी अमाउंट में, ठीक है. वेरी मच की सेंस में भी यूज़ किया जा सकता है. अलोट इज़ अ रॉन्ग वर्ड. अलोट कोई वर्ड नहीं है, कोई स्पेलिंग नहीं है, ग्रामर में कोई भी ये करेक्ट वर्ड नहीं है. दिस वन इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट वन इज शी डैश मी yesterday. Yesterday shows past tense. We always use second form of the verb with yesterday. So we use supported. Both are ed formed, but the spelling of this word is wrong. Second one is right. B is right option, supported. This one is right. Next one is did you dash it? Did you dash it? Find or found. This is past tense. That's why we can use second form of the verb. No, we can't use second form of the verb with did. Did के साथ हमेशा first form use करेंगे. So B is the right one. Next is dash is it located. This is the question. Dash is it located. अब is यहाँ पे verb है already, तो वर्ब तो यहाँ नहीं लगेगा. बट कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं. यहाँ मान लो वियर दे दिया, सेम वर्ड लगेंगे, वर, वेयर, वियर, तो हम सोचेंगे क्या लगेगा. लेकिन दिस इज द क्वेश्चन आस्किंग अबाउट द प्लेस. व्हेन द प्लेस इज आस्क्ड वी यूज ऑलवेज वेयर. बी इज द राइट ऑप्शन. जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. दिस इज डैश बुक. दिस इज माई बुक और माइन बुक. यू कैन मेंशन योर राइट आंसर इन योर नोटबुक. जल्दी से बताएंगे. दिस इज माई बुक, नॉट माइन बुक, ठीक है ना. माई बुक पोजेसिव है ये. और यहाँ पे क्या बता रखा है? बुक को क्या बता रखा है? नाउन. नाउन के साथ से पहले पोजेसिव लगा है माई बुक. पोजेसिव एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं इसको. शी डैश अ कार. शी इज सिंगुलर. That's why we are using has, not have. She has a car. Next one is I dash my homework last night. Last night shows past. Do तो आएगा नहीं, do present में होता है. That's why we are using did. I did my homework last night. Next one is Sunil dash to the store every day. Every day shows the routine. In routine कहाँ use करते हैं हम? Simple present में. That's why we are using first form of the verb, but Sunil is singular. That's why we are using S or ES. The right option is goes. Sunil goes to the store every day. Next is we dash dinner at 7 o'clock. We have आएगा या has आएगा? We is plural. That's why we are using have, not has. Have is the right answer. चेक करते रहेंगे अपने कौन सा क्वेश्चन सही लिखा है. मेरे बताने से पहले ही आप अपने आंसर को नोटबुक में मेंशन कर लेंगे, लिख लेंगे. लास्ट में आप स्कोर को काउंट करके कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करेंगे. और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव या फिर आपको जो प्रैक्टिस वीडियो आपको मिलती रहेंगी.
They dashed to the beach last weekend. Again last weekend shows the past. और past tense में हम क्या यूज करते हैं? Second form of the verb. Go is present, went is past. That's why B is the right option. Let's see the next question. The book dash on the table. अब book क्या है हमारी? Singular है. ये subject verb agreement का question है. Book singular है. That's why we are using is का यूज करेंगे. B is the right option. We dash a party next Saturday. Next Saturday shows the future. अभी वी के साथ हैज़ वैसे भी नहीं आएगा, ग्रामेटिकली रोंग है. ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट, दैट इज हैव. वी हैव अ पार्टी नेक्स्ट सैटरडे इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन इज शी डैश इंग्लिश एट द मोमेंट. शी लर्न्स और शी लर्न. She is singular, that's why we are using first form of the verb with s or es. That's why A option is right. She learns. Next is they dash a new car last month. Last month shows the future. Sorry, last month shows the past. Past को दिखाता है last month. और जब past की बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं कि हमेशा second form of the verb. Buys वैसे भी ग्रामेटिकल भी इनकरेक्ट है क्योंकि दे है, प्लूरल है, तो बाय आएगा, बाइज नहीं आएगा अगर प्रेजेंट भी हो तो. एंड द राइट ऑप्शन इज ए बोट. नेक्स्ट इज वी डैश अ गुड टाइम एट द पार्क yesterday. Yesterday shows the past. That's why we are using had. Had is the right option. We had a good time at the park yesterday. Yes, next question is he dash football every Saturday. Every Saturday क्या शो कर रहा है? रूटीन को शो कर रहा है. रूटीन में हम सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं. अब आप कहोगे दोनों में ही फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन एक एस या एस के साथ है और एक विदाउट एस है. तो जब भी सिंगुलर हमारा पर्सन होता है तो हम यूज़ करते हैं एस वाली वर्ब, यानी एस लगा हो या ई एस लगा हो. एंड द राइट आंसर इज बी, प्लेज. नेक्स्ट इज माई सिस्टर इज डैश देन मी. देन क्या शो करता है? कंपैरिजन शो करता है. जब हम दो के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री का. टॉल नहीं, हमारी पॉजिटिव डिग्री है. एंड द टॉलर इज राइट आंसर. कंपैरेटिव डिग्री इज टॉलर. एवरीवन डैश फाइन. एवरीवन सिंगुलर काउंट होता है, इसीलिए सिंगुलर ही वर्ब लगेगी. इज द राइट आंसर. शी लिव्स डैश दुबई. इन दुबई और एट दुबई. स्मॉल प्लेसेस के लिए हम एट का यूज़ करते हैं और बिग प्लेसेस के लिए, सिटीज़ के लिए हम इन का यूज़ करते हैं. शी लिव्स इन दुबई. A is the right option. The baby is dash cute. Too cute or so cute. The right answer is the baby is so cute. Yani B option is the right one. Let's see the next question. She asked me if I dash to the party. If you have seen asked. Asked is the second form of the verb. It means past tense. Then we use past in another blank also. Go is present and went is past. That's why the answer is went. Next one is the glass was dashed by her. By her shows the passive voice. जब by लगा हो सेंटेंस में तो वो पैसिव वॉइस होता है. तो by के बाद आपका जो ऑब्जेक्ट लगा होता है या सब्जेक्ट लगा होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है. तो बाय के साथ अगर हमारा ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट लगा है तो वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे? पैसिव वॉइस होता है. पैसिव वॉइस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रहती है. अब सबसे पहले हमें वर्ब को जानना भी होगा. ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, वो आपको लर्न करनी होगी. कोई रेगुलर वर्ब होती हैं और कुछ इरेगुलर वर्ब होती हैं, वो आप सभी को लर्न करनी होंगी. ब्रोक और ब्रोकन. ब्रेक is the first form, second form is broke and the third one is broken. That's why we are using broken is the right answer. Was broken by her. They have dash their lesson. They have begin or begun. Began और begun. ठीक है ना, 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब है. तो हमें थर्ड फॉर्म लगानी है. हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म जाती है. तो बिगन इज द राइट आंसर. बी इज द राइट आंसर. लास्ट क्वेश्चन फॉर यू एंड दिस इज डिफरेंट वन. द मैन इज अ डैश ब्रेकर. ट्रॉफी ब्रेकर और रिकॉर्ड ब्रेकर. ऑब्वियस है, इफ यू नो द सेंस
then you can give answer easily. The right answer is record breaker. So we have done 25 क्वेश्चन जो आपके लिए बिल्कुल एक चैलेंज की तरह थे. अब हम आपका वेट कर रहे हैं कि आपने आउट ऑफ 25 क्या स्कोर किया. आप अपने नेम के साथ जो कमेंट हैं वो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करेंगे. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या हमारे चैनल पे जो और भी वीडियोस हैं वो पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं या कोई भी आपका जो रिलेटिव है, पढ़ने वाला बच्चा है, उसके साथ शेयर कर सकते हैं. Thank you student for watching and listening me. See you soon in the next video. Till then, goodbye. Take care.